प्रभु की स्तुति महिमा हम करते हैं। और इस बाइबल स्टडी में हम सबको वेलकम भी करते हैं, वो हम भूलेंगे नहीं, क्योंकि हमारे ऑडियंस के बगैर हमारा बाइबल स्टडी चलता नहीं है। हालेलुया। तो सबको हम प्रभु के नाम में वेलकम भी करते हैं। হালেলুয়া। ट्रांसलेट। প্রভুকে অনেক ধন্যবাদ। এবং আমাদের আহ, যারা দর্শক আছেন এবং যারা শুনছেন তাদেরকেও আমরা স্বাগত করছি, স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের বাইবেল স্টাডিতে। हालेलुया। तो प्रभु की बहुत स्तुति हो, प्रभु को सदा महिमा मिले। हमारे बाइबल स्टडी का मैं ये शेयर कर रही हूँ। ग्लोरी जीसस। उप्स। प्रभु की स्तुति हो। ओके। तो हमारा ধন্যবাদ। बाइबल स्टडी का पावर पॉइंट आ गया है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम बाइबल ধন্যবাদ स्टडी পিতা। बिल्कुल पहले से शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि अ, प्रभु कौन है ये समझने के लिए। और हम ज्यादा से बातें अंत समय की ज्यादा करते हैं, तो वो समझने के लिए ये जरूरी है कि हम पहले से देखें कि ये अंत समय क्या है, क्यों है। तो इसीलिए हमें पहले से ही बाइबल का स्टडी करना बहुत जरूरी है। হালেলুয়া। এবং আমাদের যে বাইবেল স্টাডি আমরা শুরু করছি সেটা আমরা শুরু থেকেই শুরু করব। কারণ আহ, আমাদের এই বাইবেল কি, কোথা থেকে এর শুরু, বা এর সঙ্গে আমরা কি বলতে পারি, বা আমাদের জানার বিষয়টা কি সেই সম্পর্কে আমরা তাই শুরু থেকে আমরা আজকে শুরু করব, যাতে আমাদের আহ, যে আহ, যে মেসেজ আছে বা পবিত্র বাইবেলে, যে সেটাকে আমরা আজকে জানার চেষ্টা করব। आमेन आमेन। तो हम पहला वचन देखेंगे। ये हमारे बाइबल से है ये। और यशायाह का 46 अध्याय 9 से लेके 11 11 तक अगर हम पढ़ेंगे तो खोल सकती है या हम्म। खोल खोल सकती सकते है हो। या ग्लोरी जीसस। हाँ हाँ। हाँ, खोल खोल सकते हो मैम। हम्म। ग्लोरी जीसस, प्रभु की स्तुति हो। আমরা আজকে ইসাইয়া কা 46 পদ 9 থেকে 11 আমরা একটু দেখার চেষ্টা করব, এবং প্রভু এখানে কি বলতে চেয়েছেন আমরা সেটাই জানবো। হালেলুয়া। প্রভু তোমার স্তুতি, তোমার মহিমা, তোমার গৌরব হোক। হালেলুয়া। ধন্যবাদ প্রভু। আচ্ছা, 9 থেকে 11। হুম হুম। অনেক কাল আগে যা ঘটেছিল তা স্মরণ করো, স্মরণ করো, আমি সেই ঈশ্বর, অন্য কোনো ঈশ্বর নেই, আমার মতো কেউ নেই। শেষে কি হবে শুরুতেই আমি তোমাদের বলে দিয়েছি। অনেক দিন আগে আমি যা বলেছি তা কিন্তু সব এখনো ঘটেনি। আমার যা পরিকল্পনা
তা কিন্তু ঘটবেই। আমি যা করতে চাই তাই কিন্তু করি। আমি পূর্ব দিক থেকে একজন লোককে ডাকছি। সেই লোকটি ঈগলের মতো হবে। সে দূরের কোনো দেশ থেকে আসবে এবং আমি যা করার সিদ্ধান্ত নেব সেগুলি করবে। আমি তোমাদের বলছি, আমি কিন্তু এসব করবই। আমি তাকে বানিয়েছি এবং আমি তাকে নিয়ে আসব। তোমাদের কেউ কেউ মনে করে তোমাদের প্রচন্ড ক্ষমতা আছে, কিন্তু তোমরা ভালো কাজ করো না। আমার कितना पढ़ रहे কথা हैं तू? শোনো। আমি, হ্যাঁ, 11 পড় রে। हाँ। হুম। এবং আমি তোমাদের বলছি, আমি তোমাদের এসব করবই। আমি তাকে বানিয়েছি এবং আমি তাকে নিয়ে আসবো। আমেন, আমেন। हालेलुया। तो ये प्रभु का वचन है। ये वचन जो सब कुछ बता देता है कि जिस वचन को हम पढ़ते हैं या विश्वास करके पढ़ते हैं, तो वचन क्या है वो। और इधर लिखा है ये वचन में पहले ही प्रभु ने कि तू पीछे का जो है वो मत देना, रिमेम्बर द फॉर्मर थिंग। पीछे का जो है वो हम्म। इम्पोर्टेंट रहता है, वो कभी भूलना नहीं है वो। और क्योंकि मैं परमेश्वर हूँ और मेरे जैसा कोई नहीं है, प्रभु बोलता है। তো এখানে আমরা দেখছি 9 নম্বর বচনে যে অতীত, অনেক কাল আগে যা ঘটেছিল তা স্মরণ করো। প্রভু বলছে মনে করো, স্মরণ করো। কারণ অতীত, আমাদের যে পূর্ব সময় আমাদের জীবনের, সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের জীবনে, খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের জীবনে। তো প্রভু ঈশ্বর সেটাই বলছেন যে অতীতের কথা মনে করো এবং আমি সেই পরমেশ্বর পিতা, অন্য কেউ নেই এখানে। প্রভু ঈশ্বর এটাই বলতে চেয়েছেন। ओके। सो यहाँ पर दो चीजें हैं। प्रभु खुद के बारे में बोल रहे हैं कि मैं परमेश्वर हूँ और मेरे अलावा कोई नहीं है। और दूसरा अभी पार्ट हम देखेंगे कि डिक्लेयरिंग द एंड एट द बिगिनिंग, जिसने अंत पहले ही बताया है। ऐसा है ये परमेश्वर। अब তো अंत तो ऐसा था, ऐसी बात थी ये कि जिस किसी ने देखा ही नहीं है। ये लिखा है यहाँ पे, नॉट येट डन, হুম, नहीं हुआ है। হুম, उसके बारे হুম। में हजारों साल তো पहले ये लिख चुका है परमेश्वर। तो बाइबल का ये पूरा प्रवास हालेलुया, जो है, ये 6000 साल का है। হালেলুয়া। এখানে আমি সেই ঈশ্বর, প্রভু বলছেন যে প্রভু ছাড়া অন্য কোনো কেউ নেই। প্রভুর মতো কেউ নেই। প্রভু পরমেশ্বর পিতা এটা আমাদেরকে বলছেন, জানাচ্ছেন। কিন্তু 10 নম্বর বচনে যখন আমরা চলে যাচ্ছি, তখন আমরা দেখছি যে শেষে কি হবে শুরুতেই আমি তোমাদের বলে দিয়েছি। মানে আ- এর শেষে কি হবে সেটাও প্রভু ঈশ্বর আমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছেন। তো প্রভুর যা পরিকল্পনা, সেই সমস্ত বিষয় সম্পর্কে প্রভু আমাদেরকে এখানে সেই বিষয়ে আলোকপাত করতে চেয়েছেন যে প্রভুই একমাত্র ঈশ্বর এবং প্রভু আমাদের শেষও বলে দিয়েছেন এর শেষে কি হবে। হালেলুয়া। और देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कि जिस परमेश्वर की एक प्रकार से आइडिया हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि किस तरह का ये परमेश्वर होना है। जिस परमेश्वर को सब मालूम है, जिसने पहले बता दिया हो, और जब जब वो होता है तो फिर हमें पता भी लगता है कि ये हो रहा है। तो ऐसी ये परिस्थिति है ये बाइबल की।
আমাদের পরিস্থিতি এখন, প্রভু ঈশ্বর বলছেন যে আহ যতক্ষণ না আমরা জানতে পারি যে কি ঘটছে বা কি ঘটবে, বা শুরুতে কি ছিল, শেষেই বা কি হবে, এই সমস্ত কথা আমাদের সবসময় আমাদের মাথাতে ঘোরে। তো সেই শুরু এবং শেষ, আদি এবং অন্ত, যাই হোক না কেন, আমাদের পরমেশ্বর পিতা আমাদের এই পবিত্র বাইবেলে সমস্ত কিছু জানিয়েছেন। তো এটাই আমাদের মূল বিষয়বস্তু। ओके, तो दूसरा भी तीसरा पार्ट, माई काउंसिल शैल स्टैंड। मेरी जो ये मैं जो बता रहा हूं, ये बिल्कुल वही रहेगा, बदलेगा नहीं कुछ। माई काउंसिल शैल स्टैंड एंड आई विल डू ऑल माई प्लेजर। ऐसा तो प्रभु क्या कहते हैं कि मैंने जो भी बोला है, मैं मेरे प्लेजर, मेरे खुशी से करता हूं मैं। और ये जो मैंने योजना बनाई है वो होती रहेगी। और बाद में लिखा है Amen. कि कॉलिंग ravenous birds from the east and the man who executes my counsel from far। पूरी मर्जी ये परमेश्वर की। देखो ये क्या है, ये परमेश्वर खुद को क्या बोल रहा है। ये पूरा ये वचन, दो ही वचन है ये, दो या Oh, तीन वचन, Jesus. 9, 10, 11, लेकिन इसने हम्म। पूरा एक परमेश्वर का रूप भर के रखा है यहाँ पर। ऐसा मुझे लग रहा है। Amen. अभी मैं पढ़ रही हूँ तो मेरे पवित्र आत्मा मुझे दे रहा है कि ये सच में ये परिपूर्ण परमेश्वर की परिपूर्णता हमें नजर आ रही है। Amen. Amen. তো 10 নম্বর বচনের যে শেষের দিকটা, সেখানে প্রভু ঈশ্বর বলেছেন যে আমার যা পরিকল্পনা, প্রভু ঈশ্বরের যা পরিকল্পনা আছে আমাদের জীবনে, সেটাতে প্রভু ঈশ্বর একদম স্থির। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী সেটা ঘটবেই। এবং প্রভু বলেছেন আমি যা করতে চাই তাই কিন্তু করি। মানে প্রভু ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে আমাদের জীবনে যা উনি চান সেটাই হবে। এতে কোনো দ্বিধা নেই, কোনো দ্বন্দ্ব নেই। এরপর 11 নম্বর বচনে আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমি পূর্ব দিক থেকে একজন লোককে ডাকছি, সেই লোকটি ঈগলের মতো হবে। মানে পরমেশ্বর পিতার পুরো ইমেজ, যেটাকে বলে পরমেশ্বর প্রভুর যে ছবি, প্রতিচ্ছবি, সেই আমরা এই 3টে বচনেই আমরা পেয়ে যাব, আমরা পেয়ে যাই পবিত্র বাইবেলে। আমেন। आमेन। तो अभी लास्ट का जो वचन है, प्रभु रावनस बर्ड, यानी कि ये बर्ड ऐसे रहते हैं, इनको बहुत रावनस, इसका मतलब हिंदी में क्या आता है देखते मैं पूर्व से उका पक्षी। तो ये पक्षी जो है ये अपने मनुष्य जहां पर रहते वहां पर नहीं रहता ये पक्षी। ये जंगल में रहते हैं, बहुत हम्म। अरण्य में रहते हैं, ये दूर अकेले रहते हैं। दूर থেকে। तो হুম। इनको ये हमारे आसपास नहीं कि अब कोई किसी को कोई बुलाए क्या करे, और उसका भी ध्यान हमारी तरफ रहता है तो हम बुलाए तो आए, ऐसा नहीं है ये कहाँ जंगल में है किसी को मालूम नहीं पड़ता। वो खाली कारकस खाने के लिए कभी कभी आते हैं, उनको स्मेल आता है तो। लेकिन प्रभु बोलता है कि मैं उसे बुला सकता हूँ, और Amen, amen. अ, अपनी युक्ति के पूरा करने वाले पुरुष को भी मैं बुला सकता हूँ। तो बाइबल में तो ये अभी प्रभु की युक्ति जो है, प्रभु के जो प्लान्स हम बोलते हैं, प्रभु ने हीदन राजाओं को यूज किया है, हीदन राजाओं को यूज किया है अपना मतलब निकालने के लिए, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। बाइबल बहुत फेमस है, पहले से ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स है कि पिता परमेश्वर ने लोगों को चुनने के बाद अपने लिए उनको रक्षा करते हुए वो आगे आगे लेके जा रहा था। तब कैसे कैसे ये बहुत दूसरे राजे, दूसरे हीदन राजे, पेगन राजे, जो ये परमेश्वर को जानते भी नहीं थे, ऐसे राजाओं को अपने लोगों की सुरक्षा करने के लिए
यूज किया है। আমেন, হালেলুয়া। তো এই 11 নম্বর বচনের শেষের দিকে আমরা দেখতে পাই, বলছে যে প্রভু ঈশ্বর তুলনা করেছেন যে সে কোন দূরের কোন থেকে আসবে, মানে অনেক দূর যেখান থেকেই হোক, এক এক ধরনের পাখির কথা এখানে তুলনা করা হয়েছে। আহ যে তাকে কেউ দেখতে পায় না, সে এতটাই দূরে, দূরের জঙ্গলে থাকে, কিন্তু সেও প্রভু ঈশ্বরের অনুগামী, বা প্রভু ঈশ্বর যখনই যা করার সিদ্ধান্ত নেবে সেইভাবেই সে চলবে। এবং বাইবেলে আমরা দেখতে পাই যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকমের আহ উম, উম, যে সমস্ত রাজা বা যে সমস্ত রাজাদের কথা এখানে বলা হয়েছে, তো তারা আহ লুকিয়ে সেই রাজাদের যে আস্থানা, সেই সেই রাজাদের আস্থানার থেকে তারা তাদের প্রভু ঈশ্বরের কথা মতো কাজ করে গেছে। কিন্তু প্রভু ঈশ্বরের যে সিদ্ধান্ত, সেই সিদ্ধান্তই সবসময় অটল, এবং সেইগুলোই হবে। আমেন, আমেন। और बाद में प्रभु बोलता है कि मैं ही ने ये बात कही है। तो ये कोई दूसरा नहीं बोल रहा, ये खुद की बात खुद कर रहे हैं। खुद कौन है हमें बता रहा है। तो प्रभु बोलते हैं मैं ही ने बात कही है और उसे मैं ही पूरा करूंगा। मैं ही करूंगा, मैं ही प्लान करता हूँ, मैं ही एग्जीक्यूट करता हूँ, मैं ही वो करके लेता हूँ। तो और मैंने ये विचार बांधा है और उसे सफल भी मैं करूंगा। तो ये जो खुदा है, ये खुद के बारे में बोलता है, वो सेल्फ सफिशिएंट है। ये कोई उससे बोले और वो करे ऐसा नहीं है ये। तो ये हमारे हम्म। बाइबल का ये परमेश्वर है, जो बाइबल का परमेश्वर है। ये खुद की बात, ये 3 वचन में बहुत सारा हम समझ गए, बहुत सारा हम समझ गए। আমেন। आमेन। তো এখানে শেষের দিকে আমরা দেখতে পাই প্রভু ঈশ্বর নিজের সম্পর্কে কথা বলছে যে আমি তোমাদের বলছি, আমি যে পরমেশ্বর পিতা, এবং আমি কিন্তু এসব করবই। যে নিজের প্রকাশ সম্পর্কে বলছে যে পরমেশ্বর প্রভু এই সময় একদম স্থির, অটল, এবং আমি তাকে বানিয়েছি এবং আমি তাকে নিয়ে আসবো। মানে নিজের যে সিদ্ধান্ত, সেটার যে দৃঢ়তা, সেই সম্পর্কে প্রভু ঈশ্বর বলেছেন যে সমস্ত কিছু তার হাতে। আমেন লর্ড। ग्लोरी जीसस। तो यही ये बाइबल का परमेश्वर है और इसे हम ज्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए कर रहे हैं Amen. क्योंकि हम बिलीव कर चुके हैं, विश्वास कर चुके हैं, समझ चुके हैं कि ये परमेश्वर जिंदा खुदा है। तो इसीलिए हम पहले से ही बाइबल स्टडी करें तो ज्यादा इस परमेश्वर के बारे में जानने लगेंगे। और जैसे जानेंगे तो वही हमारी खुद का एक्सपीरियंस बन जाएगी। Amen. তো আমাদের প্রভু ঈশ্বর নিজের সম্পর্কে এইভাবেই সেই দৃঢ়তা প্রকাশ করেছেন, কারণ প্রভু ঈশ্বর জীবিত পরমেশ্বর। এবং আহ এখানে আমরা আগে শুরু থেকে যদি আমরা জানার চেষ্টা করি, তবে প্রভু ঈশ্বর আমাদের জন্য কি কি পরিকল্পনা, তার যা পরিকল্পনা, তিনি আমাদেরকে নিয়ে কি করতে চান, আমাদের শুরুই কোথায়, আমাদের শেষই বাকি, আমরা সেই সমস্ত বিষয় সম্পর্কে একদম সুন্দরভাবে সেই সত্যতা আমরা জানতে পারবো। হালেলুয়া। ग्लोरी जीसस। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी अभी हमारी ये बाइबल जो है, तो ये बाइबल पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि ये जो जो हम देखते हैं, जो हम खुद भी है, जब दुनिया को देखते हैं तो ये बाइबल से पता चलता है कि कॉन्सेप्ट एक होता है जो शुरुआत और अंत, ये बाइबल में हमें समझ में आता है। Amen. তো
আমরা আজকে আহ শুরু থেকে একটু শুরু করব। তো এই বাইবেলের যে যেটা বাইবেলের সূত্রপাত, যেটা শুরু বা যেটা শেষ, মূল বাইবেলের যে মূল কথা, সে সম্পর্কে জানতে গেলে, সেই সত্যতা জানতে গেলে আমাদের শুরু থেকেই শুরু করতে হবে। তো আমরা ধীরে ধীরে এই সম্পর্কে জানবো। আমেন। आमेन। और जैसे हम देखेंगे कि यीशु ने भी कहा है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, यानी कि मैं शुरुआत भी हूँ और अंत। तो ये थोड़ा समझने के बाद पता चलता है कि ये जो भी है परमेश्वर, इससे सब कुछ शुरू हुआ है और इसमें ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब कोई बोलता है अंत के बारे में, तो डेफिनेटली उधर कुछ तो होगा। আমেন। তো প্রভু যিশু তার নিজের সম্পর্কে বলেছেন যে আমি আলফা ও ওমেগা, মানে আমি শুরু এবং শেষ। তো যে শুরু এবং শেষ, এর মাঝের সময়টুকুন, এবং যেটা আদিতে ছিল, যেটা অতীত এবং যেটা বর্তমানে ও ভবিষ্যৎ, সে সম্পর্কের যে মেলবন্ধনটা, সেটা যদি আমরা জানতে পারি প্রভু ঈশ্বর এখানে কি বলতে চেয়েছেন, তো সেটা আমাদের আমাদের জীবনে সেটা আমরা পরিষ্কার ভাবে আমরা ধীরে ধীরে বুঝতে পারবো, এবং সেই সম্পর্কে আমাদের জীবনে আমরা সেটা অনুভব করতে পারবো। আমেন। जीसस बाइबल के अनुसार यीशु बहुत अच्छे टाइम पर आ गया। ऐसा लिखा है कि ही केम ऑन राइट टाइम। तो ये परमेश्वर को मालूम था कि ये राइट टाइम कब शुरू हो जाएगा, कब यीशु को भेजेगा वो, और फिर अंत समय की शुरुआत हो जाएगी। তো প্রভু যিশু আহ মানুষের জন্য, মনুষ্য সমাজের জন্য সঠিক সময়ে এসেছিলেন। কারণ পরমেশ্বর পিতা আহ সময়ের সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহল। তো উনি জানেন যে আমাদের জন্য সঠিক সময় কোনটা। তাই প্রভু যিশুকে উনি আমাদের জন্য সেই সঠিক সময়ে পাঠিয়েছেন। আমেন। ओके। तो अ, थोड़ा मैं बस शुरू करूंगी, हम अंत समय के बारे में फिर हम हमारा पहले से ये लेसन में थोड़ा हम फाउंडेशन तैयार करेंगे, और फिर शायद नेक्स्ट संडे से हम प्रॉपर उत्पत्ति से शुरू करेंगे। तो अभी जो हम कहते हैं अंत समय के बारे में, तो व्हाई वी से दैट वी आर इन एंड टाइम्स, तो ये प्रश्न बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता बिल्कुल। और इसीलिए उनका उत्तर भी उनको मालूम नहीं पड़ता। और जब हमें कुछ मालूम नहीं पड़ता, तब क्या हो जाता है, हम बेसावध हो जाते हैं फिर, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं कुछ। और फिर परमेश्वर का हम्म। वचन कहता है कि अब हम अज्ञान में रहे, तो अंधकार जैसे आकर नाश कर देता है, वैसे ही मनुष्य का भी नाश हो सकता है। হুম। তো আজকে আমরা একটুখানি অন্ত সময়ের সম্পর্কে জানবো, যেটা শেষ, প্রভু ঈশ্বরের অন্ত সময় সম্পর্কে আমরা জানবো। তারপরে এরপরে রবিবার থেকে আমরা একদম আদি পুস্তক শুরু থেকে শুরু করব। কারণ কেন আমরা এটাকে অন্ত সময় বলবো, সেই সম্পর্কে আমরা একটু জানার চেষ্টা করব। কারণ আহ আমাদের যদি কোনো ধারণা না থাকে, আমরা যদি কিছু বুঝতেই না পারি, তবে আমরা একটু অসাবধান হয়ে যাই। আমরা একটু আমাদের জীবন সম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বন করতে পারি না, যে আমরা ঠিক কোন সময়ে আছি, কোন সময়ে বাস করছি। তো সেই সম্পর্কের যে ধারণা, সেটা আমরা একটু একটু করে জানার চেষ্টা করব। आमेन। आमेन। ओके। तो थोड़ा हम दूसरों के बारे में भी थोड़ा सोचते हैं। हमारा बाइबल का तो हम पढ़ेंगे ही, समझेंगे, लेकिन दूसरे जो रिलीजन्स है, हिंदुइज्म है, बड़ा बिग रिलीजन, इस्लाम बिग रिलीजन,
और बुद्धिज्म ऑल्सो, बहुत सारे अगेन बिग रिलीजन, फेमस मेजर रिलीजन है ये तीनों। अ, तो इनके बारे में अगर हम देखें तो इनमें ना अम, शुरुआत है, कैसे शुरुआत हुई, मनुष्य कैसे आया, क्या हो गया ऐसा कि अ, अंत ये दुनिया का करना पड़ेगा। और यही कोई लिखा लिखा नहीं है, बाइबल जैसा प्रिसाइज लिखा नहीं है। थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है जिससे लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट है उनको कि ये कलयुग आने वाला है, ये उनको मालूम है, पाप ज्यादा हो गया, लेकिन डिटेल्स नहीं है। और डिटेल्स भी नहीं है तो ऑब्वियसली जो जो मुश्किल है, जो जिस पाप आया और ये मुश्किल बढ़ गई, वही एड्रेस नहीं किया है, वही लिखा ही नहीं है। तो ये पाप से ये अंत समय में मनुष्य का क्या होगा, मनुष्य अगर नाश होता है तो मनुष्य को मुक्ति का कुछ मार्ग है क्या, नहीं है, ये कोई एड्रेस नहीं किया है। হুম। তো আমরা একটু অন্য বিষয়ে দেখার চেষ্টা করব। অন্য বিষয় বলতে অন্য ধর্মের কথা একটু দেখার চেষ্টা করব। আহ যেমন আমাদের হিন্দু, যারা হিন্দু, সেটা আমাদের একটা বিশাল আকৃতির ধর্ম। এবং মুসলিম যারা, আহ, তারাও এক বড় আকারের একটি ধর্ম। এবং যারা বৌদ্ধ, তারাও আহ এক এক বিশাল আকার একটি ধর্ম নিয়ে আছে এই পৃথিবীতে। তো কিন্তু এই সমস্ত ধর্মই আহ কোনো, সেটার কোনো শুরু, কোথা থেকে শুরু বা কোথায় বা শেষ, সেই সম্পর্কে সঠিক কোনো তথ্য আহ আমরা পাই না। আমরা পাই না সেই সমস্ত তথ্য, যে কোনো বইয়ে, তাদের যে ধর্মীয় বিষয়ক যে বই, সেই বইয়ে কোনো সেই সম্পর্কে কোনো কিছু রয়েছে কিনা, বা সেই সত্যতাটা, সেই আশার কথা, যেখানে শুরু থাকবে, যেখানে শেষের বাণী থাকবে, সেই সম্পর্কে কোনো রকম কোনো ধর্মীয় বইতে সেখানে কিছুই লেখা নেই। ओके, Amen. तो यही बात है, इसीलिए हम डिटेल्स में बाइबल में जो लिखा है यही हम पढ़ने वाले भी है। तो इसलिए प्रभु की स्तुति हो कि बाइबल में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो हम समझ जाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा ये परमेश्वर के बारे में जाएंगे जो हमारा खुद का परमेश्वर है ये। और बाद में हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजा, और फिर यीशु के द्वारा कैसे पिता परमेश्वर ने मनुष्य के मुक्ति का मार्ग खोला, यही हम देखने वाले हैं। ग्लोरी जीसस। Amen. তো এরপর তো আমরা আমাদের পরমেশ্বর পিতার সম্পর্কে জানবো। এবং আমাদের মানুষের জন্য, মনুষ্য জাতির জন্য প্রভু যিশুকে পরমেশ্বর পিতা এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন। তো প্রভু যিশু আসার পরে আমাদের কি হয়ে গেল, আমরা আহ কি করতে পারলাম, তো সেই সম্পর্কে আমরা এখানে একটু আমাদের যে বাইবেল আছে সেই বাইবেলের অনুসারে প্রভু ঈশ্বর কি কি আহ পরিকল্পনা করে গেছেন, তো সেটাই আমরা জানবো। या, तो अभी हम हमारा बाइबल स्टडी हम यहाँ ही खत्म करते हैं, क्योंकि अ, ये 10 मिनट में खत्म होने वाला है। तो प्रभु की स्तुति हो। नेक्स्ट वीक हम अच्छी तरह से करेंगे, और शुरुआत करेंगे, शुरू से शुरुआत करेंगे कि परमेश्वर ने कैसे उत्पन्न किया, क्यों किया, और क्या हो गया, इससे हमारी शुरुआत होगी। हम सब सुनने वालों को हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि ये बाइबल, और आशा करते हैं कि ये बाइबल स्टडी सुनने के बाद आपको एक जीवित परमेश्वर की समझ आएगी, और ये कैसा परमेश्वर है, जीवित है, हमारा निर्माण करता है, ये समझकर। और जिस परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसे ही नहीं छोड़ा हमें, हमें हमारे साथ है वो, और अपने पुत्र को मनुष्य के रूप में भेजकर बहुत बड़ा उपकार करके पिता परमेश्वर ने हमें आज बहुत संभाल के रखा है। और इसीलिए बस हम सबको हम्म। आशीष देते हैं
कि और प्रभु से आशीष भी लेते हैं कि आने वाले बाइबल स्टडी से हम समझकर परमेश्वर के लिए जिएंगे। आमीन। হুম। তো আজকে আমরা এই পর্যন্ত আজকে শেষ করছি। এরপরের সানডে, রবিবার থেকে আমরা নতুন ভাবে শুরু করব এবং শুরু থেকে আমরা শুরু করার চেষ্টা করব। আমরা ধীরে ধীরে আগে যাব, প্রভু ঈশ্বর আমাদের যেভাবে চালিত করবেন সেভাবেই আমরা আগে যাব। এবং আমরা দেখব আমরা যে প্রভু ঈশ্বর যিনি সত্য, যিনি মার্গ এবং জীবন, তার সত্যতা কতখানি সেই সম্পর্কে আমরা জানার চেষ্টা করব। এবং যারা আমাদের দর্শক আছেন তাদেরকে আমরা প্রভু ঈশ্বরের তাদের তাদের জন্য আমরা প্রভু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি, তাদের সবার মঙ্গল কামনা করছি। এবং আমরা আজকে এখানেই শেষ করছি। প্রভু ঈশ্বর সকলের সঙ্গে থাকুক। সবার জন্য আমরা প্রার্থনা জানাচ্ছি। জয় যিশু। আমেন। आमीन आमीन। और बुल्टी को भी बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी तरह से वो हमारे लिए ट्रांसलेशन कर रही है। तो डेफिनेटली हमारे बंगाली समझने वाले सब प्यारे लोगों को ये बहुत आशीष मिलेगी मिलेगी। आमीन। আমেন। সবাই, ম্যামকেও আমি ধন্যবাদ জানাই এবং যারা শুনছেন সেই দর্শকদেরও আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই, যারা বাংলায় শুনতে যাচ্ছেন। আমেন। आमीन आमीन। और प्रभु की दया सबको मिले, और प्रभु का प्यार। जो भी मुश्किलें हैं, जो भी है, प्रभु के टाइम में सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रभु का वचन है कि सीक ye फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। प्रभु का वचन है कि पहले उसके राज्य को पाओ তুমি और फिर রাজ্যের सब খোঁজ तुम्हें করো। मिलेगा। तो यही बस हमारे তো ये प्रवास में हम ध्यान देके हुए आगे जाएंगे। আমেন। প্রভু প্রভু ঈশ্বরের বচনে আছে যে আগে তুমি আমার রাজ্যের খোঁজ করো এবং তোমার যা কিছু প্রয়োজন তোমাকে তার সঙ্গে সঙ্গে তোমার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে দিয়ে দেওয়া হবে। हालेलुया। তো আমরা তার ধার্মিকতার খোঁজ করব আগে। আমেন। आमीन আমেন। आमीन। चलो अभी बंद कर देते हैं। प्रभु की स्तुति हो। आमीन आमीन। আমেন। আমেন। हालेलुया। হালেলুয়া।